Assalamu alaikum. Now we will further study about the chapter of the business plan creating and starting the venture. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी किया था उसी चैप्टर की जो है ये कंटिन्यूएशन है कि एक बिजनेस प्लान बनाते हुए और वो बिजनेस प्लान हो किसी एक न्यू वेंचर को क्रिएट करने का या स्टार्ट करने का हम क्या चीज़ें देखते हैं, क्या चीज़ों को फोकस में रखना चाहिए, बिजनेस प्लान लिखते किस तरह है, किन किन लोगों को बिजनेस प्लान जो है वो डायरेक्टेड होता है, जो उसके रिसीवर्स होते हैं उनको जहन में रखते हुए क्या क्या पॉइंट्स जो है हम बिजनेस प्लान में लिखते हैं, तो ये चीज़ें आपने इम्पोर्टेंटली डिस्कस करनी होती हैं। तो आज देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए गिवन है। फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन नीड्स। Whenever you are starting any new venture or any new project or any new business, आपको कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट के बारे में, लेबर के बारे में, ओवरहेड के बारे में, तो you need all kinds of information before you start up or create a new venture, or you before you start any new project. So what kind of informations would you want or would you require before starting up of any adventure? Would be location, at what location you would like to start your operation. Second one is manufacturing operations, that what kind of operations related to manufacturing of the product or related to the marketing of the product would you like to start, and on what location what operation will be performed. Next one we would be raw materials. You would have to require what information about the inputs of the venture, like what are the raw materials, if it's the product, that what are the raw materials for the final product, if it's the service, that how the layout would look like, how the skilled workers would look like, or how professional they should be, how educated they should be, what should be the equipment, what should be the skill level of the labor, what should be the layout or what should be the space, what should be the overheads or overhead costs. So most of the information related directly to the business plan or indirectly to the business plan, you have to take care of the information regarding those things. Next is financial information needs. Finance or money is the most important thing for the businesses, because you cannot start up any venture or you can without money. You cannot pay off your employees if you do not have funds. You cannot even advertise yourself if you do not have funds. So there are various ways where you really need funds and you really need finance for developing your business. The entrepreneur has to prepare a budget of all possible expenditures and revenue sources, including sales and any external available funds. The entrepreneur or the marketer or the manager who is going for that new venture or creating the new venture or the project, he needs to prepare the budget of all the possible expenditures which will be occurred in the project, what could be their revenue sources, how are they going to earn the profit, and what could be the sources of the funds. The budget includes capital expenditures, direct operating expenses, cash expenditures, and non-expense items. Industry benchmarks can be used in preparing the financial pro forma statements in the financial plan. Using the internet as a resource tool. The internet can provide information for industry analysis, competitor analysis, and measurement for the market potential. इंटरनेट को हम इंडस्ट्री के एनालिसिस के लिए, फाइनेंस के एनालिसिस के लिए, कंपेटिटर के एनालिसिस के लिए, मार्केट की पोटेंशियल को देखने के लिए हम इंटरनेट को वेरियस वेज में यूज कर सकते हैं. It is a valuable resource in later stage planning and decision making, and it provides opportunities for the marketing strategy. इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम लेटर स्टेजेस ऑफ द वेंचर के अंदर हम प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट वेंचर्स की केस स्टडीज को पढ़ के हमारी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प हो सकती है. और इंटरनेट जो एंटरप्रेन्योर है वो किन किन सोर्सेज से जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए गुड इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं. पॉपुलर सर्च इंजन से, कंपेटिटर की वेबसाइट से, सोशल नेटवर्क से, ब्लॉग से, डिस्कशन ग्रुप से. तो बहुत टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अपने बारे में, कंपेटिटर के बारे में, मार्केट के बारे में
इंटरनेट के थ्रू हासिल की जा सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन ही आपको मिल रही है, आइदर आप डायरेक्टली कंज्यूमर से पूछें, आइदर आप इंटरनेट यूज करें, तो ये इंफॉर्मेशन नीड्स आपकी फुलफिल हो रही है। नाउ राइटिंग अप ऑफ द बिजनेस प्लान। A business plan should be comprehensive enough to give any potential investor a complete picture and understanding of the new venture. Business plan इतना comprehensive means इतना फुलफिलिंग होना चाहिए, इतना होलसम होना चाहिए कि जो उसका इन्वेस्टर है उसके सामने आइडिया की कंप्लीट पोटेंशियल, कंप्लीट पिक्चर और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखे। उस राइटिंग में ये सब जो है एस्पेक्ट्स मौजूद होने चाहिए। It should help the entrepreneur clarify his or her thinking about the business, और उसके अपनी जो thinking है about the potential, about the opportunity, about the funding, about how that idea can create profits, ये भी जो है उस business plan में मौजूद होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पेज बिजनेस प्लान के, उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, उसका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी एंड नेचर ऑफ द बिजनेस की कंपनी जो कि क्या नेचर होगी, क्या डिस्क्रिप्शन होगी, किस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस करेगा, किस तरह के सर्विसेज को जो है वो प्रोड्यूस करेगा, फाइनेंस स्टेटमेंट, ये कितने एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होंगे, कितने ओवरहेड रिक्वायर्ड होंगे, क्या एसेट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट वुड बी एग्जेक्टिव समरी। 2 या 3 पेजेस के अंदर आप कंप्लीट एग्जेक्टिव समरी ऑफ द बिजनेस प्लान। समरी क्या होती है कि आप जितना भी आपका एक्सटेंसिव मटेरियल होता है, थीसिस होता है या प्रोजेक्ट होता है, आप उसको फ्यू पेजेस के अंदर समराइज करके बता देते हैं कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो आपका जो एक पूरा एक डिटेल्ड या एक्सप्लेन्ड बिजनेस प्लान होगा, उसकी एग्जेक्टिव समरी 2 या 3 पेजेस के अंदर आपको बतानी होगी। इन्वायरमेंटल एनालिसिस कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या ये किन फैक्टर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, या किन फैक्टर्स को देखते हुए आपने ये बिजनेस प्लान या इसका आइडिया कंसीव किया है। और इंडस्ट्री का एनालिसिस कि इंडस्ट्री के अंदर क्यों इस न्यू वेंचर की ज़रूरत है, कंपेटिटर कौन सी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा, कौन से आइडियाज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो ये बिजनेस प्लान न्यू आइडियाज़ लेकर आएगा। सो आपके एक बिजनेस प्लान के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल एनालिसिस प्लस कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्री एनालिसिस मीन कंपेटिटर एनालिसिस भी मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे कुछ जो है सैम्पल क्वेश्चंस गिवन है जो कि इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्री एनालिसिस में आप करते हुए ये इन्वायरमेंटल या इंडस्ट्री एनालिसिस अगर अपने प्रोजेक्ट करें तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन से व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, विच मीन्स पेस्ट एनालिसिस, लीगल, पॉलिटिकल फैक्टर्स वुड अफेक्ट, व्हाट आर टोटल इंडस्ट्री सेल्स ओवर पास्ट 5 years, what is the anticipated growth, how many new firms have entered into this industry in past 3 years, what new products have been recently introduced, nearest competitors, how will your business operations be better than this, how are the sales of each of your major competitors growing or declining, strengths and weaknesses of your competitors, new trends, profile of your customers, and how the profile of your customer is different from the profile of the competitor's customer. Now, what what questions you are going to answer before describing your venture? Like, what should be the content present in your executive summary, or how are you going to make your business plan really strong? So, by describing the mission of your venture, by describing the reasons of going to that business or the industry, why will you be successful in this venture, like your confidence statement, what development work has been done till date, what is your product or service, describe the product and service including patents and copyrights, what will be the business, where will the business be located, like where is going to be located, आपकी location क्या होगी, जो buildings use करेंगे वो किस तरह होंगी, leased है या owned है, बिल्डिंग की लोकेशन राइट है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, कौन से ऑफिस इक्विपमेंट जो है चाहिए होंगे, कौन से इक्विपमेंट परचेज कर लिए हैं आपने, कौन से इक्विपमेंट लीज कर लिए हैं, कौन सी अगर बिल्डिंग को परचेज कर लिया है या लीज कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने वेंचर में डिस्क्राइब करेंगे।
प्रोडक्शन प्लान किस तरह से आप लिखेंगे, विल यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल और पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। अगर तो आपके पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि आप स्क्रैच से लेके एंड प्रोडक्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन तक आपके पास इतनी पोटेंशियल मौजूद है, इतने फाइनेंसिस मौजूद है कि आप ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्किल्स मौजूद हैं, तो आप जो है टोटली ओन करेंगे इस सारे सिस्टम को। लेकिन अगर आपके पास पार्शियल पोटेंशियल मौजूद है तो कुछ पार्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग का आप ओन करेंगे, कुछ आउटसोर्स करेंगे। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किस पार्ट का। इफ सम मैन्युफैक्चरिंग इज सब कॉन्ट्रैक्टेड, वो हु विल बी सब कॉन्ट्रैक्टर, जो आपके साथ आपके पार्टनर सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होंगे वो कौन होंगे, कौन से पार्ट को सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, किस तरह से सब कॉन्ट्रैक्टर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, क्या कॉस्ट होगी सब कॉन्ट्रैक्टर से मैन्युफैक्चर करवाने की। सो वेरियस क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल बी द लेआउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा या जो पूरा प्लांट लगाएंगे आप उसका लेआउट क्या होगा, कौन सा यूनिट किस तरह से लिंक्ड होगा, किस तरह से एक यूनिट की आउटपुट दूसरे यूनिट की इनपुट होगी और आपकी फाइनल आउटपुट क्या होगी। What equipments will be immediately needed, what raw materials will be needed, suppliers, cost of manufacturing and future capital equipment needs of the venture। So या ये तीनों जो टेबल्स के अंदर क्वेश्चन मौजूद हैं ये आपके बिजनेस वेंचर की बिजनेस प्लान को, इन क्वेश्चंस का आंसर अगर उस बिजनेस प्लान में मौजूद होगा तो वो इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर्स के लिए एक अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होगा और वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान कंसिडर होगा जो कि विन कर सकता है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस प्लान्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर टिल नाउ, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी covered in upcoming video. Thank you so much, and if you have any questions you can contact.